ہم دو ہمارے 12۔ آپ لوگوں نے بھی اس مووی کا نام یا پھر پوسٹر کہیں نہ کہیں پر دیکھ ہی لیا ہوگا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف لگ بھگ لوگ اپنے اپنے انداز میں اسی مووی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسپیشلی اس کے پوسٹر کو واٹس ایپ اسٹیٹس اور انسٹاگرام اسٹوریز پر خوب لگایا جا رہا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اس مووی کا بائیکاٹ کیا جائے یا ممکن ہو سکے تو اس کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیا جائے۔ کیونکہ دعوے کے مطابق اس مووی میں مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن کی توہین کی گئی ہے، اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے اور جان بوجھ کر اس کی آیتوں کے غلط مطلب دکھائے گئے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کے میننگ کو نکال کر لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویسے تو اس مووی کے اوپر میری نظر کافی پہلے ہی پڑ چکی تھی، مگر میں نے اس کو اگنور کر دیا کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی چیز کی نیگیٹو پبلسٹی بھی آخر پبلسٹی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اب جب ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے ہر گھر میں اس کا نام پہنچ چکا ہے، آپ لوگ بھی لگاتار کامنٹس باکس میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنانے کی ڈیمانڈ کر ہی رہے تھے، تو فائنلی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس مووی کا آپریشن کیا ہی جائے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں انڈین بیسڈ بالی ووڈ انڈسٹری میں ایک الگ ہی چلن دیکھنے کو ملا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گٹر میں پڑا ہوا کوئی بھی ایکٹر یا پھر کوئی ڈائریکٹر کہ جس کو اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایسا بڑا پروڈکشن یا بڑا ایکٹر بھی کہ جس کی پچھلی کئی موویز لگاتار ناکامیاب ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے دماغ میں اچانک سے ایک اینٹی مسلم یا اینٹی اسلام نام کا کیڑا کاٹتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ جب لوگ ہندو مسلم کر کے بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو آخر ہم لوگ ہندو مسلم پر بنائی گئی ایک فلم سے پیسہ کیوں نہیں کما سکتے؟ بس پھر کیا یہ ایک نئے گاربیج کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ حالانکہ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ شروعات میں تو بالی ووڈ کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ کامیاب رہا تھا، بہت ساری موویز کامیاب ہوئیں، ایون بلاک بسٹر تک ثابت ہوئیں، مگر اب حالات بدل چکے ہیں، زیادہ تر پبلک اویئر ہو چکی ہے، ان لوگوں کی اس ٹیکنیک کو سمجھ چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی موویز لگ بھگ ساری ہی ناکامیاب ثابت ہو رہی ہیں۔ ایون کچھ موویز تو ایسی بھی ہیں کہ جن کو سردار اعلیٰ نے خود بھی پروموٹ کر ڈالا، مگر پھر بھی آخر میں وہ فلاپ ہی ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر اس نئی فلم کو ہی دیکھ لیجئے جو رپورٹس کے مطابق 7 جون 2024 کو ریلیز ہونے والی ہے۔ نام ہے ہم دو ہمارے 12۔ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس مووی کا ٹاپک تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، مگر یہ کن دو لوگوں کے 12 ہیں، اس چیز کی سمجھ آپ لوگوں کو اس وقت ہوگی کہ جب آپ اس مووی کا پوسٹر دیکھیں گے، کیونکہ اس میں تو کلیئرلی دیش کے ایک وشیش سمودائے کو، ایک اسپیسیفک ریلیجن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو بھارت کی آج اتنی زیادہ آبادی بڑھ چکی ہے کہ ہم چائنا سے بھی جو آگے نکل چکے ہیں، اس کا ریزن کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف یہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی ہے کہ جو اس پوسٹر میں دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں پوسٹر میں نظر آنے والے اس مسلم جوڑے کے ڈھیر سارے بچے آگے تو بیٹھے ہوئے ہیں ہی، ساتھ ہی اس عورت کی گودی میں بھی ایک بچہ ہے، اور تو اور اس کے پیٹ میں بھی ایک بچہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویسے ہندوستان کی یہ آبادی اتنی تیزی کے ساتھ کس کی وجہ سے بڑھی اور کون زیادہ بچے پیدا کر رہا ہے، یہ تو اپنے آپ میں ہی ایک ایسا براڈ ٹاپک ہے کہ جس پر لمبی ویڈیو بن سکتی ہے اور گھنٹوں تک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ بس موٹا موٹا آپ اتنا سمجھیے کہ آلریڈی بہت ساری رپورٹس یہ کلیئر کر چکی ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیچھے ریزن کوئی بھی ایک ریلیجن، کوئی بھی ایک کمیونٹی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سیدھا تعلق لٹریسی ریٹ سے ہے، یعنی جہاں پر عورتوں کی تعلیم کا گراف اوپر ہوتا ہے وہاں پر آٹومیٹیکلی فرٹیلیٹی ریٹ نیچے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کے ایک علاقے لکشدیپ کو ہی دیکھ لیجئے کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی 95 سے 96% کے قریب ہے، مگر وہاں کا جو اوور آل فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ باقی انڈیا کے فرٹیلیٹی ریٹ سے حد سے زیادہ کم ہے۔ کیونکہ وہاں کی عورتوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے یعنی کہ ایجوکیشنل گراف ہے وہ کافی اوپر ہے۔ اس کے الٹ اگر آپ لوگ بہار جیسے راجیوں میں آئیں گے جہاں کی عورتیں پڑھائی لکھائی تعلیم سے حد سے زیادہ دور ہیں، وہاں پر یہ فرٹیلیٹی ریٹ حد سے زیادہ اوپر ہو جاتا ہے، اب وہ چاہے مسلم فیملی ہو یا پھر ہندو فیملی ہو۔ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، فرٹیلیٹی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عورت کتنے بچے پیدا کرتی ہے۔ ایون دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی ابھی کچھ وقت پہلے ہی اپنی ایک چناوی ریلی میں جب مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اور تڑکا لگاتے ہوئے یہ کہا تھا
कि भाई तुम लोगों की संपत्ति कांग्रेस इकट्ठा करके उन लोगों को देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मतलब घुसपैठियों को देना चाहती है, मुसलमानों को देना चाहती है। तो खुद नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन बाद ही अपने उस बयान से पलट गए थे। मतलब कुछ दिन के बाद ही जब उनकी एक प्रिय पत्रकार रूबिका लियाकत ने उनसे अपने इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने मुसलमानों के बारे में ऐसा ऐसा बोला, तो इस पर नरेंद्र मोदी तो भावुक हो गए और कहने लगे कि मेरा मतलब तो उससे गरीब लोग था, क्योंकि गरीबी की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, गरीब लोग ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मूवी पर वापस आए तो करंट स्टेटस ये है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर से ये ट्रेलर लगभग मूवी मेकर्स की तरफ से गायब कर दिया गया है। वजह साफ है, बढ़ते हुए विरोध की वजह से इनको भी डर सताने लगा था और ये समझ में आ गया होगा कि भाई बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की नहीं है जैसा कि पहले की मूवीज में भी होता आया है, बल्कि यहाँ मामला इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से इन लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत तरीके से आयतों के ट्रांसलेशन को दिखाया है, उससे ये आसानी के साथ लीगल एक्शन में फंस सकते हैं और बाद में जुर्माना भरते हुए या फिर हर जगह माफी मांगते हुए ही नजर आएंगे। ट्रेलर शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही तकरीर कर रहे एक मौलाना को दिखाया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इस इंसान को इन्होंने सुरमा, दाढ़ी और पगड़ी वगैरह के जरिए से मौलाना का गेटअप देने की कोशिश तो की है, लेकिन शायद दे ना सके। अभी भी खौफनाक शक्ल का ये वही इंसान लग रहा है जो शायद ये असल में होगा। ट्रेलर में नजर आ रहा यही मौलाना ही वो आयत पढ़ रहा होता है कि जिसको बिल्कुल गलत तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और लोगों को मिसलीड करने के लिए दिखाया गया है और फिर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस्लाम में तो औरतों के कोई हुकूक यानी कि राइट्स ही नहीं होते हैं, इनको तो ये लोग एक टिश्यू पेपर की तरह या ये कह सकते हैं कि बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये औरतों को सिर्फ हवस मिटाने का एक जरिया समझते हैं। इनके दिमाग में तो ये ख्याल होता ही नहीं है कि औरतों की मर्जी भी होती है। ये लोग जबरदस्ती भी औरतों के साथ हमबिस्तरी यानी कि सेक्स करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में मौलवी साहब गला फाड़ फाड़ कर सूरह बकरा आयत 223 का हवाला देते हुए कहते हैं कि अल्लाह कहता है तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, उनमें जैसे चाहो वैसे जाओ। मतलब मैसेज ये दिया जा रहा है कि जितने बच्चे चाहो उतने पैदा करो, तुम्हें कोई रोक नहीं। इवन अगर एक औरत हमल की हालत में हो और उसका शौहर उसको बुलाए तब भी वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि औरत तो मर्द की फर्माबरदारी के लिए ही बनी है और अगर मर्द की फर्माबरदारी नहीं करेगी तो मानो वो कुफ्र कर रही है और कुफ्र की सजा मौत है। सिर्फ ये सब कुछ इस ट्रेलर में कहा ही नहीं गया है, बल्कि वक्त वक्त पर औरतों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है और लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये लोग तो औरतों को ट्रीट ही गुलाम की तरह करते हैं। ये जैसे चाहें मारें, जैसे चाहें फोड़ें, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इस बेवकूफ अनु कपूर को तो इतना भी नहीं पता है कि जिस दौर में इस्लाम आया था उस दौर में तो लड़की का पैदा होना ही एक मर्द की कमजोरी समझा जाता था। लोग समाज में शर्मिंदगी के डर से उन लड़कियों को जिंदा ही दफना दिया करते थे। जो लड़कियां हुआ भी करती थीं वो अमीरों की गुलाम समझी जाती थीं और उनको सिर्फ जिस्मानी लज्जत के लिए रखा जाता था। सिर्फ उतना ही खाना पीना दिया जाता था कि जितने से उनकी जिंदगी चल सके, मतलब वो सरवाइव कर सकें। औरतों को राइट्स मिलना तो दूर, बल्कि ये लोग उस दौर में औरतों को बहुत कमतर माना करते थे, जो मर्द के मुकाबले में तो उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बेवकूफ ये भी कह सकते हैं कि शायद ये सिनेरियो सिर्फ अरब का था, तो याद रहे कि हाँ ये सिनेरियो अरब का था। अभी मैं वहाँ की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर शौहर की मौत के साथ ही उसकी विधवा औरत को भी उसी की चिता पर जला दिया जाता था, क्योंकि उस जगह का सिनेरियो यहाँ से भी कई गुना ज्यादा बुरा था। कितना ज्यादा बुरा इस बात का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस किताब को ही गुस्से में जला दिया कि जिस किताब के अनुसार ये सब कुछ हुआ करता था। मगर इस्लाम ने आकर तो इन तमाम चीजों का बिल्कुल ऑपोजिट किया। उन लड़कियों को कि जिनको जिंदा जला दिया जाता था उनको न सिर्फ अब इज्जत के साथ जीने का हक मिला, बल्कि उनकी अच्छी जिंदगी की जिम्मेदारी ही उन मर्दों पर डाल दी गई कि जो लड़कियों की पैदाइश से शर्मिंदा हुआ करते थे। माँ के पैरों के नीचे जन्नत करार दी गई तो बेटी को रहमत बताया गया। छोटी मोटी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, उस दौर में ऐसे ऐसे बड़े राइट्स दिए गए कि जिनको कोई दूसरी सोसाइटी देना तो दूर बल्कि देने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। विरासत यानी प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार बनाया गया और खुला की शक्ल में उसको सेपरेशन का अपना राइट भी दिया गया। यानी अगर कोई लेडी भी चाहती है कि उसे अपने शौहर से अलग होना है तो वो खुला की शक्ल में अपने राइट को इस्तेमाल कर सकती है। याद रहे कि ये तो वो चीजें हैं कि जो अभी 2-3 सदी तक भी दुनिया के किसी और कोने में नहीं दिखाई देती थी। इवन यूरोप जैसे एडवांस इलाके में भी अभी 2-3 सदी पहले तक सिर्फ इस बात पर डिबेट हुआ करती थी कि औरतों के अंदर सोल यानी कि रूह पाई भी जाती है या फिर नहीं,
क्योंकि अगर पाई जाती है तब ही वो इनको बराबरी का हक दे सकते थे। अब जहाँ तक मामला ट्रेलर में दिखाई गई कुरान की इस आयत का है, तो हमेशा की तरह इन लोगों ने इस आयत को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की है। स्पेशली उन गैर मुस्लिम को गुमराह करने की कोशिश की है कि जो मुसलमानों को या इस्लाम को मीडिया के जरिए से ही देखने की कोशिश करते हैं। दुनिया की किसी भी किताब की तरह अगर आप लोग कुरान को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है वो आपको गलत ही दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो इंसानियत के खिलाफ है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि तौहीद की बात करने वाला कुरान शिर्क की दावत दे रहा है। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत में लिखा हुआ दिखाई देता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन अगली ही आयत में लिखा हुआ है कि जिसने भी ऐसा कहा तो उसने शिर्क किया। अब आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अगर कोई भी डंडी मारने वाला इंसान हो तो वह किस तरह से इस आयत के जरिए से भी लोगों को बेवकूफ बना सकता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला बड़ी चालाकी के साथ इस मूवी के मेकर्स ने कुरान की इस आयत के साथ भी किया है। इन्होंने लोगों को सूरह बकरा की आयत नंबर 223 के बारे में तो बताया, लेकिन 222 के बारे में नहीं बताया, और उसी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस तरह से डंडी मार रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोई बात ही नहीं चल रही है कि जैसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ पर तो हैज यानी कि माहवारी के जिसको आजकल पीरियड कहा जाता है उसकी बात चल रही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 का मफहूम यही है कि खुदा ने ऐसे वक्त पर ऐसे हालात में मुस्लिम मर्दों को अपनी बीवियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से मना किया है कि जब उनकी बीवियां पीरियड की हालत में हों, क्योंकि इन स्पेसिफिक दिनों में वो न सिर्फ नापाक होती हैं बल्कि दर्द और परेशानी की हालत में भी होती हैं। और वैसे भी मुमकिन है कि ऐसा करने पर इन्फेक्शन या बीमारी वगैरह का खतरा भी बना रहता है, जिसको आज के दौर की मेडिकल साइंस भी साबित करती है। इस आयत में ये भी हुक्म दिया गया है कि उस वक्त तक तुम लोगों को रुकना है कि जब तक उनकी ये स्पेसिफिक स्टेज यानी कि उनके पीरियड्स खत्म ना हो जाएं, और फिर जस्ट अगली आयत शुरू होती है जिसमें इसी बात को कंटिन्यू किया जाता है, और उसी में कहा जाता है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे खेतों की मानिंद हैं, तुम जैसे चाहो उनके साथ वैसे रहो, आगे का प्लान करो यानी अपनी औलादों के बारे में सोचो। लेकिन साथ ही इसी आयत में ये भी कहा गया है कि अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुमको मरकर एक दिन उसके सामने हाजिर होना है। अब यहाँ पर नोट करने वाली मजेदार बात ये भी है कि इन लोगों ने पिछली आयत को तो काटा ही, जिससे इस आयत का कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया। ऊपर से जो 223 यानी 223 आयत नंबर है जिसको इन्होंने यहाँ पर पढ़ा भी है, उसका भी आखिरी पार्ट काट दिया, कि जिससे इन लोगों की क्लियरली पोल खुल जाती कि यहाँ पर बात जुल्म सितम, ज्यादा बच्चे पैदा करने वगैरह की नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर तो बात ही औरतों के कंफर्ट और औरतों के राइट्स की चल रही है। यानी खुदा अपने उन बंदों को वार्निंग दे रहा है कि जो औरतों के कंफर्ट, उनके राइट्स वगैरह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यही बड़ा झूठ ही वो वजह है कि जिसकी वजह से अब मूवी रिलीज होने से पहले ही कभी तो यूट्यूब से इनका ट्रेलर प्राइवेट हो जा रहा है, तो कभी कहीं दूसरी जगह से डिसअपियर हो जा रहा है, क्योंकि इनको भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि केरला स्टोरी की तरह ये भी कोर्ट में तो नहीं टिक पाएंगे। वो तो दूसरा मामला था, तो सिर्फ माफी से या फिर डिस्क्लेमर लगाकर काम चल गया था कि हाँ हमारी मूवी झूठी है, फिक्शनल है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ मामला क्योंकि एक रिलीजियस बुक का है तो मामला भारी भी पड़ सकता है। मुमकिन है कि इनके खिलाफ इंडियन जुडिशियरी कोई एक्शन लेगी, या फिर ये भी मुमकिन है कि इनकी मूवी अपने वक्त पर रिलीज भी हो जाए, और रिलीज होने के बाद जब तक लीगल एक्शन और कार्रवाई वगैरह का टाइम आए तब तक ये मूवी बिल्कुल केरला स्टोरी की तरह मोटी कमाई भी कर चुकी हो। और शायद यही इन्होंने सोचकर ये फिल्म बनाई भी होगी, क्योंकि झूठ का पुलिंदा तैयार करते हुए ये तो इनको भी यकीन होगा ही कि कोर्ट कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही, लेकिन कब लेगा इनके लिए ये मायने रखेगा। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।